Jai Siya Ram. So, as I've been given an assignment to deliver a lecture on the legal drafting regarding GST Appellate Tribunal, I would try to constrain myself on the given topic. The time is limited. The topic is big, not just bigger, it is biggest actually. So before I start, I would like to give my heartfelt thanks to respected chairman sir and other committee members to provide me this forum to deliberate upon the hot issue, that is GST 80. And I would say that it is GST 3.0 basically. Being a chartered accountant, we have another forum to represent ourselves, to skill up ourselves, and to enjoy this forum. The moment I say to enjoy, that means not to differentiate a work and non-work life. That is truly very, very important, because whenever we see a life of professional, they do generally segregate the working days and non-working days. एक अपने सर शास्त्रों में भी एक अवधारणा है, अद्वैत की अवधारणा. एक तो होती है द्वैत अवधारणा और एक होती है अद्वैत की अवधारणा. अद्वैत की अवधारणा ये बोलती है कि आप और मैं अलग नहीं है. द मोमेंट वी स्टार्ट टू डिफरेंशिएट, वी स्टार्ट टू स्ट्रगल. And because this is a new forum, the time to skill, the time to devote ourselves, let us enjoy this forum. With this brief intro, I would like to delve into the topic. The moot question of the legal drafting, is that what is special in this forum? We are already appearing before GST adjudicating authority. We are also appearing before the first appellate authority. And both of these authorities are quasi-judicial. At the same point of time, we have the GST Appellate Tribunal for us. And as the constitution of this GST Appellate Forum is briefed by our learned speaker, Shri Ravi, and he also mentioned that yes, there are 2 technical members and there are 2 judicial members. As you can understand that this is also a quasi-judicial authority. So this is also a forum of that kind only. So a pertinent question arises that what is a difference for which we are discussing? अगर कुछ नया नहीं है तो मुझे लगता है कि इस मोमेंट पर लिटिगेशन लीगल ड्राफ्टिंग फॉर अपील बिफोर GST 80 का क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से पैदा नहीं होता. कुछ तो इस फोरम में होगा जिसके लिए हमको ये समझने की जरूरत है कि इसकी लीगल ड्राफ्टिंग कैसे हो. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट एंड फंडामेंटल पॉइंट विच शुड अराइज इन आवर माइंड, that what is special at this forum for which we need to look into. And as you can see that we have the 5 forums so far as the GST litigation is concerned. As we have just discussed, GST adjudicating authority, and then appellate authority, which is dealt with under section 107 of Central GST Act. And then we have GST Appellate Tribunal, and of course, then we have High Court and Supreme Court. So we have 5 forums. And each time this point is discussed, that how to draft. Many a times people do discuss that, जैसा अभी सर ने बोला कि फेस वैल्यू का फर्क पड़ता है.
और जब फेस वैल्यू का फर्क पड़ता है तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अपीयरेंस है जो मैटर करेगी, ड्राफ्टिंग ऑल्सो मैटर्स। आपकी ड्राफ्टिंग से आपके एट्रीब्यूट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो मैनी पीपल डू ड्राफ्ट इट विद अ सबकॉन्शियस माइंड, मैनी पीपल डू ड्राफ्ट इट with in a very conscious mindset. And let me tell you, the forum is an intelligent forum which recognize that attribute, and that makes your face value also. So if you are appearing before the forum, you are nice in the appearance, but you are not nice in your drafting, it is likely to endanger. And one thing which you would observe, कि जो आप लिख रहे हैं वही फाइनली ऑर्डर बनाने के समय काम में आएगा। वॉट यू हैव स्पोकन बिफोर द अथॉरिटी और द अपीलेट ट्रिब्यूनल, और वो ऑर्डर कब बनेगा, यहाँ तो अभी बताया कि 30 डेज में उसको बनाना है, लेकिन लेट मी टेल यू दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड इन ए वेरी स्ट्रिक्ट मैनर। जैसे जीएसटी लॉ में प्रोविजन है कि डीम्ड रजिस्ट्रेशन, अगर आपने इतने दिनों में रजिस्ट्रेशन नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि वो रजिस्टर हो गया। वैसा केस यहाँ नहीं है कि अगर 30 डेज में नहीं दिया तो इसका मतलब आपके फेवर में चला जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान जीएसटी लॉ में नहीं है और वो हो भी नहीं सकता। अगर वो होगा तो वो खुद अनरीजनेबल हो जाएगा एंड देयर बाय इट विल बी एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग। सो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द इंटेंट ऑफ दिस फोरम कि 30 डेज के बियॉन्ड जाकर अगर ऑर्डर दिया है तो वो क्वेश्चनेबल है या वो टेनेबल नहीं है और सो एंड सो। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कि जो आप लिखने जा रहे हो फाइनली वही पॉइंट है या फाइनली वही पेपर है जो ऑर्डर बनाने के समय उन लोगों द्वारा यूज लिया जाएगा। एंड सो लीगल ड्राफ्टिंग इज प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल, very very critical role. So I have a very lengthy PPT for you, but generally I always prepare, but I generally don't refer because that does not make it natural, right? So the important point is what is not coded. तो मैं आपको बता तो सकता हूँ लीगल ड्राफ्टिंग ये होता है वो होता है, लेकिन मजा तो तब है जब आप अनरिटन में से कुछ कोडिंग कर पाओ। So law is there, you have several sections with you. I think there are 5 provisions so far as GST 80 is concerned in the Central GST Act, and you have some number of rules are there with you for in the CGST and SGST rules, and then you have the GST Appellate Tribunal rules which are recently published. वो तो है, लेकिन जहाँ तक लीगल ड्राफ्टिंग का सवाल है उसके लिए कोई लॉ नहीं है, उसका कोई लॉ नहीं है कि लीगल ड्राफ्टिंग आपको। ऑफ कोर्स यू हैव सर्टेन कोड्स विद यू विच आर प्रेस्क्राइब्ड इन द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल रूल्स कि आपको इस फॉर्मेट में रखना है, आपका ये साइज ऑफ पेपर होना चाहिए, आपका ये फॉन्ट होना चाहिए, ब्ला एंड ब्ला। यू नो, इफ आई कीप दीज थिंग्स असाइड, द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ टू ड्राफ्ट द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू नो विच आई आस्क्ड टू क्रिएट अ क्यूरियोसिटी कि ऐसा इसमें क्या है जिसके लिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। See, the law is same, be it a matter of any forum. The facts are same, be it at any forum. दो ही चीजें होंगी, या तो फैक्ट्स होंगे या लॉ होंगे। दोनों चीजें किसी भी स्थिति में बदल नहीं रही है। एंड एट द फोरम ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, it is said that it is the final fact finding authority, and it does not mean that it is only finding the facts. Of course it is discussing about the question of law as well. You have the next forum, that is High Court and Supreme Court, which discuss about the substantial question of law. So there are three things now: the question of facts, the question of law, and then we have the substantial question of law. And let me tell you, whenever I do talk about question of facts, we have to consider it as relevant facts. So mere facts are not enough. Mere facts are not enough. We have to be considerable for the relevant facts. So matter चल रहा है, कई बार
मैटर चल रहा होता है कि 16/4 का, से फॉर एन एग्जाम्पल. नाउ अमाउंट डज नॉट मैटर एक्चुअली. अभी हम लिखे जा रहे हैं कि इतने अमाउंट का क्रेडिट था, एक्चुअली वो मैटर ही नहीं कर रहा है. कितने अमाउंट का क्रेडिट है, दैट डज नॉट मैटर. सो वी हैव टू बी वेरी कंसिडरेबल. If you are very smart in your drafting, that is always appreciated by the forum. I am not saying that you should not mention it, but the way of mentioning makes you differentiated amongst others. So you have to pick that what is relevant, what is not relevant. People start to draft like anything. They are writing the facts in 10 pages, 20 pages, 30 pages like anything. They are preparing 100 pages of appeal. I am not saying कोई उसका बेंचमार्क रूल नहीं है कि 100 पेज का नहीं हो सकता या 2 पेज में ही होना चाहिए. It is very important to see, as my previous learned speaker has mentioned, that you have to know the forum. It is very very important. कौन सा जज, कौन सा मेंबर, कौन सी अथॉरिटी, उसका एट्रीब्यूट क्या है, दैट वी हैव टू ऑलवेज. क्योंकि किसी को छोटा पसंद है, किसी को कॉम्प्रिहेंसिव पसंद है. नाउ देयरफॉर दीज आर वेरी सब्जेक्टिव. दीज आर वेरी सब्जेक्टिव. दीज प्रोफेशंस एक्चुअली ये स्केलेबल इसीलिए नहीं हो पाए बिकॉज दीज आर वेरी सब्जेक्टिव. एंड नोइंग द फोरम will make you learn it that in what fashion you have to go further. Now I am again coming on the point that there are question of facts, there are question of law, and there are mixed question of facts, and there are pure question of law, and there are substantial questions of law. ये सब चीजें हैं जो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पर भी बात कर रहे हैं, फर्स्ट अपील पर भी बात कर रहे हैं, जीएसटी 80 पर भी बात करनी होगी. ऑब्वियसली आगे वो बात नहीं होगी. That will be the substantial question of law. So, do you have any say on it कि किस तरीके से हम फर्स्ट अपील की ड्राफ्टिंग को जीएसटी 80 से डिफर कर सकते हैं? Do you have anything to say on it? If you have any observation for this or any feedback on it. तो सर एक बार उससे हेल्प लेकर देखिए, आपको उसमें से अंगारा निकलेगा. ओके, चैट जीपीटी, अभी वो IT/80 का एक जजमेंट, वो स्टोरी सबने देखा है, राइट? एंड विच वी पीपल आर ऑल्सो. तो आई हैव ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड चैट जीपीटी किस तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. सो चैट जीपीटी इज ऑल्सो इन लर्निंग फेज. अभी उसको 2-3 साल लगेगा और मैच्योर होने में, बट मुझे फिर भी लगता है कि लीगलिटी में वो उतना रोल प्ले नहीं कर पाएगा. US UK हैव ऑलरेडी टेस्टेड इट लॉन्ग बैक. 10 साल पहले वो सब कर चुके हैं. वो सोच चुके हैं कि इस फील्ड के अलावा सब में करना है इसको. AI एंड लीगलिटी इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव थिंग. दे मे असिस्ट यू. आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल नॉट असिस्ट. इन माई टीम ऑल्सो, तो आर्टिकल्स आर ऑलवेज स्मार्ट, राइट? इंटर्न्स आर ऑलवेज स्मार्ट. तो उनको कभी कोई काम कहते हैं तो वो क्या करेंगे? वो अपने को लाकर ऐसे देंगे जैसे अपने को पता नहीं है, राइट? है ना? और ऐसा नहीं है, हम भी आके सीनियर अगर बने तो उसी फेज से बने हैं, तो हमको पता है कि इवॉल्विंग कैसे होता है. सो चैट जीपीटी का वर्जन आप पढ़ के पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली ये चैट जीपीटी का है कि नहीं. उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है. AI के आजकल तो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो पता लगा लेते हैं कि AI जनरेटेड है कि नहीं है, बट वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके दिमाग में होगा. आप 5 बार करके देखिए, आपको पता चल जाएगा ये चैट जीपीटी का वर्जन है कि नहीं. अगर आपकी पैनी नजर है तो आप दोहा पढ़ के बता सकते हैं कि वास्तव में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है. इफ यू हैव द रियल कीन लर्निंग इन द सब्जेक्ट, यू वुड ऑटोमेटिकली ऑब्जर्विंग दिस कि एग्जैक्टली किस लेवल का वजन है. तो आप ये मत सोचिए कि उस फोरम को ये पता नहीं चलेगा. डोंट अंडर एस्टिमेट. मतलब वो बहुत ही सुसाइडल भी हो सकता है, बिकॉज दैट मे नॉट कैरी द एक्चुअल इमोशन. बिकॉज यू आर
जब हम अब आगे हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ड्राफ्टिंग में आपके पास में दो ही चीज़ें, देखो कहने को तो दो ही चीज़ें हैं, अगर आप APL 05 को भी पढ़ेंगे और APL 01 को भी पढ़ेंगे, सो यू हैव टू मेंशन द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड यू हैव टू गिव द ग्राउंड्स ऑफ अपील। तो मेरा चैप्टर तो खत्म हो गया। लीगल ड्राफ्टिंग मैं तो यही बोलूंगा कि आपका स्कोप 2 तक लिमिटेड है, फुल स्टॉप, एंड माय सेशन इज ओवर। बट अगर आपको इन फोरम्स पर एक्चुअली सक्सेस लेनी है तो आपको अपर लेयर निकालना पड़ेगा, और अपर लेयर वो है जो जनरली लोग नहीं कर रहे हैं। अपर लेयर निकालने के लिए तो यही है ना कि यू हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड, एंड व्हेन यू हैव टू मेंशन द स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, तो आपको क्या बताना है उसमें? टक्कर आपने नहीं मारी है, टक्कर आपको लगी है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। द मोमेंट यू आर एबल टू सब्सटेंशिएट योर फैक्ट्स इन सच अ फैशन, तो वहां से कोई ना कोई रिलीफ का रास्ता निकल सकता है। फैक्ट्स क्या है, नहीं तो लोग जनरली बहुत ही सिंपली उसको लिख देते हैं। अच्छा, सिंपल होने का मतलब ये नहीं कि वो गलत है, लेकिन क्या सिंपल उस दिशा में लीड कर रहा है जिससे वो रेलेवेंट हो जाए, जिससे वो आपकी सफरिंग को शो कर सके, और जिससे आप ये प्रूव कर सके कि टक्कर लगी है, मैंने टक्कर मारी नहीं। एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, the statement of facts would lead to the justice. It is highly likely to have a justice from that. As I was mentioning that this legal drafting is the final, final deliberation of yours so far as that impugned case is concerned, उसी को पढ़ के लोग समझेंगे, क्योंकि एक वो 2 महीने बाद बनाएगा, 3 महीने बाद बनाएगा, दे विल बी एक्चुअली मिसिंग आउट, क्योंकि उनका पूरा दिन में पूरे वो सारे डिस्कशन चल रहे हैं, सारी डिबेट चल रही है, सारी हियरिंग्स चल रही है। सो योर फाइनल पॉइंट इज योर लीगल ड्राफ्टिंग। द मोमेंट यू स्टार्ट टू शार्पन योर सेल्फ, द मोमेंट यू स्टार्ट टू शार्पन योर सबमिशन, मुझे लगता है कि आपकी, आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दैट कि पर्सनल हियरिंग मैटर नहीं करता है, ऑफ कोर्स दैट प्लेज अ रोल बिकॉज यू मेक इट समराइज, बट रिगार्डलेस ऑफ दिस दे विल हैव टू इशू द रीजनड ऑर्डर, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक जस्टिस as mentioned in the preamble of the constitution. The economic justice is the preamble of the part of the preamble of the constitution. They have to consider your entire submission. Are you getting my point? Yes. So हम बात कर रहे हैं कि exactly इस फोरम से वापस हम, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, these are the live points and these are highly interconnected. So I am saying that you have to know how to draft the question of law, how to draft the statement of facts, and how to draft the grounds of appeal. The statement of facts are evidence based. The statement of facts are evidence based, and the question of law is not evidence based. The law is law. उसको किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं है. सप्लाई, whether the partnership remuneration is falling under the scope of supply, that is absolutely a question of law. That is not at all based on the facts. Yes, ये फैक्ट जरूर हो सकता है कि क्या वो रेम्यूनरेशन है या नहीं, वो एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन आपको ये दोनों चीजों में डिस्टिंग्विशिंग करना आना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट टू क्लासीफाई द थिंग्स इन सच अ फैशन, यू बिकम शार्पर. एक तो होता है कि मुझे अपील ड्राफ्ट करना है, एक ये है कि मैंने उसको 5 तरीके से क्लासीफाई कर दिया. नाउ आई विल बी प्रिपेयरिंग माई ग्राउंड्स ऑफ अपील कंसिडरिंग वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. मैं अपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाऊंगा. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या है, मेरे क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है. अब मेरे दिमाग में ग्राउंड्स ऑफ अपील में फैक्चुअल ग्राउंड्स भी हैं एंड मेरे पास में लीगल ग्राउंड्स भी हैं. लीगल ग्राउंड्स को अगर मैं इस तरीके से बाइफर्केट करूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स क्या हैं एंड स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स क्या हैं. अब मैंने बाइफर्केट करना शुरू किया. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आई एम क्लासीफाइंग द थिंग्स. एक तो ये होता है कि मुझे से दिस इज द स्क्रीन एंड if you have been asked to
क्रिएट ए स्टोरी फॉर दिस पिक, कितने पॉइंट्स निकालोगे? लेकिन अगर आपने इसको क्लासिफाई कर दिया 50 तरीके से, बिलीव मी यू कैन राइट 1000 ऑफ द पेजेस फॉर दिस स्क्रीन. एंड सो इज द केस ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग. So is the case with the legal drafting. So what you have to do is, you have to bifurcate two things. Grounds of appeal, statement of facts, grounds of appeal. Grounds of appeal, again two parts. Legal grounds, factual grounds. Legal grounds, two parts. Constitutional grounds and statutory grounds. And then statutory grounds again in two parts. Substantive grounds and procedural. The moment you start to have classification and then further classification and then further classification, you start to create the point within yourself. जब आपने आपकी चेकलिस्ट को इतना कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया है, तो आप अपने हिसाब से आपको अपने आप ही पता लगने लगेगा कि एग्जैक्टली कितने ग्राउंड्स बन सकते हैं. एंड लेट मी टेल यू, whenever we do talk about the legal drafting, this has to be comprehensive. All the possible grounds should be part of your submission. Of course, this should be precise. तो कई बार ये हो जाता है कि all the possible grounds मतलब क्या सर 100 पेजेस तक लेना है? ऐसा नहीं है. Each and every ground has to be very precise. उसको पढ़ के कोई भी समझ जाए. अच्छा, yes, that is very important that the document has to be the speaking document. और speaking document वही है कि उसको पढ़ के कोई भी चीज को समझ पाए. एंड whenever I do draft the things, I do use 3 types of things: initiator, connector and terminator. These are my own classification. ये कहीं लिखा नहीं है, but what I have observed from the reading of the documents, so more precisely legal documents, I come to know about these 3 things. Sabhyavati. Initiator, connector and terminator. Initiator क्या बताता है? Initiator actually allows someone to enter into your document. हर एक ground का अपना एक initiator होगा. Appellant wants to submit this. Now this is the opening point. This is not the initiator. The initiator is what? You are actually welcoming the reader into your document, और in fact उस particular ground के लिए आप उसको enter करवाना चाह रहे हो. And then आप अपनी बात रखते हुए जैसे ही एक बात से दूसरी बात को कनेक्ट करते हो, दूसरी बात को लिखना चाहते हो, तो दोनों चीजों का जो कनेक्शन है, that connection has to be proven by the connector sentences. And then you have the terminator with you. Finally आप उसको close करेंगे, उस ground को आप close करेंगे कि in the light of so and so contravention of the provision, it is very clear that this proceeding should be dropped. So कई बार ये होता है कि आप ground लिख रहे हैं, आप उसको close नहीं कर रहे. I think यहाँ पर yes please sir. अलग होगा सर. आप APL 05 को रीड करिए. There are 2 specific points. APL 01 को देखेंगे तो statement of facts and grounds of appeal, दोनों चीजें डिमार्केटेड है, तो दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है. यस, आपके फैक्ट की राइटिंग, अब ये देखिएगा बहुत ही बड़ा प्ले है यहां पर. आपके फैक्ट्स की राइटिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए so that it should lead to the existence or so as to lead to the factual grounds. यही फैक्ट्स आपके फैक्चुअल ग्राउंड्स की तरफ जाएंगे. अगर आपके फैक्ट्स फैक्चुअल ग्राउंड्स की तरफ नहीं जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि देयर इज अ नीड ऑफ इंप्रूवमेंट इन ड्राफ्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. ओके, सो दिस इज बॉटम अप अप्रोच आई शुड से. आपको पहले ये पता हो मुझे करना क्या है, उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी बन के एंड देन यू स्टार्ट टू ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. एंड हर एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट शुड लीड टू योर सफरिंग एंड योर रिक्वायर्ड रिलीफ फ्रॉम दैट फोरम. दिस इज अ वेरी फाइनर वर्जन. कहना बहुत आसान है,
आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मुझे यहाँ तो आसान काम ही करने को कहा गया है. सो मैं तो वही कहूँगा कि ऐसे करना है, राइट. द मोमेंट यू स्टार्ट टू राइट देन यू एक्चुअली कम टू नो कि इसको किस तरीके से. दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज. लेकिन उसके लिए ये कि आपको जितना इस फील्ड में जितना रस आएगा उतना ही आप अंदर जाएंगे. सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हैं. अगर आपको लीगल ड्राफ्टिंग का एक सैंपल देखना है तो सफारी रिट्रीट्स का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रीड करिए. ब्यूटिफुली आर्टिकुलेटेड जजमेंट. इट इज नॉट द जजमेंट ओके फॉर विच यू हैव टू लुक इनटू. इट इज ऑल अबाउट, मैं जितनी भी बातें कह रहा हूं मैंने उन सारी चीजों को वहां चेक किया है. जितने भी पैरामीटर्स पे मैं बात कर रहा हूं, आई हैव टेस्टेड ऑल द पैरामीटर्स जितना मेरी नॉलेज में है. In that judgment, I should really appreciate and acknowledge the efforts of the Honorable Supreme Court that how they have drafted it. और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बोले उन पॉइंट्स को अगर चेकलिस्ट बना के, चेक पॉइंट्स बना के उस जजमेंट को पढ़ेंगे आप, तो यू विल फाइंड कि यस दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, हाउ दे हैव मेड इट रेलेवेंट फैक्ट, हाउ दे हैव रेज द क्वेश्चन ऑफ लॉ, हाउ दे हैव फ्रेम द इश्यू, हाउ दे हैव रिजॉल्व द इश्यू. सो दिस इज वाइस वर्सा अप्रोच. आपको टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों चीजों की एक जर्नी आपको जीनी होती है और उसी से ही आप अपने स्किल्स को शार्पन करते हैं. यस, सफारी रिट्रीट्स जजमेंट. रिट्रीट्स, हाँ, सेक्शन 17(5)(d) वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट. बट यू रीड द जजमेंट फॉर लीगल ड्राफ्टिंग. Okay, and let me tell you, this is also an art. क्योंकि आप जैसा चाहते हो, जैसा रिजल्ट आप चाहते हो, उसी हिसाब की ड्राफ्टिंग आपको होनी चाहिए. सो दैट आपके माइंडसेट से जज और द मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल शुड थिंक ऑन इट. जैसा आप चाहते हो वैसा वो सोचे. वो तो तभी होगा ना जब आपकी ड्राफ्टिंग उस तरीके की होगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये ईमेल भी लिखते हो तो आप कई बार यही सोचते हो ना कि इट शुड इंटेंड टू माई रिजल्ट, राइट. सामने वाला उसको उसी तरीके से परसीव करे और आप किस तरीके से उससे वो रिस्पॉन्स चाहते हो. द वे ऑफ ड्राफ्टिंग, मतलब अब यहां से अगर मैं इसको और फाइनल पॉइंट पे ले जाऊं, दिस इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी. देखिए, फैक्ट्स बिल्कुल स्टेगनेंट है, लॉ बिल्कुल क्लियर है. अब यहां आ रही है साइकोलॉजी कि आप उसको अपनी सफरिंग तक कैसे ले जाते हैं और आपके इंटेंडेड रिजल्ट तक उसको लाने की आपकी प्रक्रिया क्या है. द थिंग्स आर नॉट चेंज, बट द मोमेंट यू गो एट द हायर फोरम, योर वर्जन शुड बी द हायर वर्जन. सो एडजुडिकेटिंग हो, फर्स्ट अपील हो, चाहे GST/AT हो, बात एक है. लेकिन आप हायर फोरम पर जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन भी हायर फोरम जैसी ही होनी चाहिए. आपका अगर ये सिंगल मेंबर है ना, अभी जो रवि जी बात कर रहे थे कि इफ देयर इज अ मैटर ऑफ अमाउंट ऑफ अप टू 50 लाख रुपीज, अ सिंगल मेंबर विल टेक अप दिस केस. बट द लॉ इज साइलेंट ऑन इट कि वो किस कैटेगरी के हैं, क्या वो टेक्निकल है, क्या वो जुडिशियल है. दैट इज नॉट नोन टू यू. नाउ यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. हु इज हियरिंग माई केस, हु इज डीलिंग विद माई केस. इफ दैट मेंबर इज जुडिशियल मेंबर, तो आपको खुद को समझ में आएगा वो लॉ ओरिएंटेड बंदा है. आप अपना पासा चेंज कर सकते हैं, आप अपना पासा पलट सकते हैं. स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग, यस, वी कैन ऑलवेज डिस्कस, बट it is because very subjective, so you need to know the forum. आपको ये समझ में आएगा कि, और स्पेशली because we all are the chartered accountants. जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जनरली विद ड्यू रिस्पेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का यहाँ पर लीगल ड्राफ्टिंग में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है. सो इफ यू रियली वांट टू टारगेट दिस फोरम, यू हैव टू लर्न हाउ टू ड्राफ्ट द फैक्ट्स. ये एक बहुत ही अलग प्रिपरेशन है जिसका किसी लॉ से लेना देना नहीं है. जैसे
जैसे मैं आपको ये कहूं कि किसी फोरम पर आप गए और आपको 2 घंटा वहां बिठा दिया गया. नाउ इफ यू वांट टू नो द, इफ यू वांट टू राइट द फैक्ट्स, ओके, जस्ट क्योंकि अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो फैक्ट्स में जब एक्सेल करना चाहते हैं तो आपको एज ए लेमैन उस पर थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा. द पॉइंट इज कि आपको किसी फोरम पर 2 घंटा हो गया है एंड यू आर नॉट स्टिल गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट योरसेल्फ. हाउ कैन यू ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स? कुड यू जस्ट एक्सरसाइज ऑन इट? कोई बता सकता है मुझे? Anyone, you all know. If I mention that I am delayed by 2 hours and I have not been given the opportunity to present my case, is it the fact? Yes, it is the fact. Can I make it sharpen? क्या इसको मैं शार्प कर सकता हूं कि मैं टाइम पर आया था? अब यहां से कहानी शुरू हो रही है. उससे पहले भी मुझे ये टाइम दिया गया था, मैं इस टाइम पर आया था एंड आई वॉज सिटिंग फॉर 2 hours बिफोर द फोरम एंड आई वॉज डिलीजेंटली attempting to attend this particular meeting or hearing blah blah blah. Now what I am doing is I am making the facts in such a style which is showing that I deserve to get a justice out of it. चीजें वही हैं, लेकिन आप उसको कितना कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं और कितना रिलेटेबल बनाते हैं ये आपके आर्ट पे डिपेंड करेगा. जैसा मैंने आपको बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, इसमें आप क्या एविडेंस प्ले करेंगे? क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एविडेंस प्ले नहीं करेंगे तो क्वेश्चन ऑफ लॉ को लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को लिखने के लिए यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी कॉन्शियस. हेलो एवरीवन, बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना सर? यस, क्योंकि ये पीपीटी है मेरे पास में और कई बार मेरे को ये कहा जाता है सर दिखाते तो हो नहीं, बना के ले आते हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ चमत्कार है ही नहीं. ओके, सो जो अनरिटन है वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ये सब चीजें लिखी नहीं जा सकती, या लिखी जानी है तो फिर दैट टेक्स अनदर जर्नी ऑफ टाइम एंड ऑल. The entire process of legal drafting is about the consciousness and about the psychological pattern of your thinking process. Believe me, इंस्टीट्यूट के फोरम में मैं कई बार बोलता हूं कि इंस्टीट्यूट के फोरम पर कि आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज में साइकोलॉजी एक टॉपिक होना चाहिए. और कोई भी साइकोलॉजी जो बनती है वो 2 चीजों से बनती है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. एंड देयरफॉर यू वुड ऑब्जर्व यूपीएससी एग्जाम में ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं बिकॉज दे हैव टू डील द साइकोलॉजी फर्स्ट. और यहां भी आप इस फोरम से जस्टिस जो लेना चाह रहे हैं वो साइकोलॉजिकल लेना. वी आर नॉट कॉन्शियसली प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी. द मोमेंट वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इट, आपको समझ में आएगा उसका प्रियोरिटी कैसा है, ग्राउंड्स ऑफ अपील का प्रियोरिटी कैसा है. ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं है, लेकिन हम कितना कॉन्शियसनेस का डिग्री कितना बढ़ा सकते हैं, दैट इज द पॉइंट. So whatever I am saying, it does not mean that you people are not doing. You people must be doing and better than me. But the point is, can we make it more better? And that is all about the consciousness. Hello everyone. Yes. So just to in between 10-15 मिनट में इस पीपीटी वाले को भी प्रेजेंटेशन को भी ले लेता हूँ. आर्टिकल 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो जब भी हम जाते हैं किसी भी प्रोविजन, किसी भी चीज पर लीगलिटी में जाते हैं तो हम उसके मदर प्रोविजन पर जाना चाहते हैं, उसकी रूट से उसको पकड़ना चाहते हैं. जब तक उस रूट से हमने उसको नहीं पकड़ा, मुझे लगता है कि फिर वो सबकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है. ओके, सो आई रीड आर्टिकल 323B. इट सेज द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर में, क्योंकि आपको फोरम को समझना बहुत जरूरी है. द पॉइंट इज, आप फोरम को नहीं समझेंगे तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे, उसको आप उस चीज पर ले जाएंगे कैसे, राइट? सो देयरफॉर वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोविजन इन अ वर्ड एंड इन द स्पिरिट. द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर में, कोमा, बाय लॉ, कोमा,
provide for the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints or offenses with respect to all or any of the matters enlisted in clause 2, with respect to which such legislature has the power to make the law. So legislature के पास जिन मुद्दों पर लॉ बनाने की पावर है, एंड दोज मैटर्स विच आर एनलिस्टेड इन क्लॉज 2 विच वी आर गोइंग टू स्टडी, क्योंकि रेलेवेंट पार्ट है सिर्फ उतना ही पढ़ूंगा, उससे रिलेटेड मैटर्स पे ट्रिब्यूनल को दो चीजें को पावर दिया गया, एडजुडिकेशन और बाय ट्रायल. सो इट इज नॉट जस्ट द एडजुडिकेशन, रादर द पावर ऑफ ट्रायल इज ऑल्सो देयर विद द ट्रिब्यूनल. एंड फॉर व्हाट? Of any dispute, complaints or offenses with respect to all or any of the matters specified in so and so clause. The first point is the appellate tribunal adjudicating the matter? Yes or no? Hello? Yes. Then why do we have separate things with us in the GST law? Adjudicating authority, appellate authority, first appellate authority, and then we have the appellate tribunal. So is the appellate tribunal adjudicating authority? But here it is written to which provide for adjudication or trial by tribunals. And here the word tribunal is written, not the appellate tribunal. If you take it word by word, you will have the apprehension with you. Actually, appeal is the final point of adjudication. Okay, we have to take it in that spirit only. So adjudication, yes, appeal in that sense is also an adjudication. The scope of the adjudication may differ from the forum to forum, of course. So it is providing for adjudication or trial by tribunals. So of course the tribunals may also have multiple types of tribunals. So appellate tribunal is also one of them. And here they says the matters referred to in clause 1 are the following, namely levy, assessment, collection and enforcement of any tax. And so the learned speaker has mentioned that it is a creature of statute, not the creature of constitution. The courts, high courts and supreme courts are the creation of the constitution. These are the constitutional courts. They have the wider discretionary power, let me tell you. They carry the wider discretionary power with them. Because the final point is the justice. फाइनल पॉइंट इज जस्टिस, और वो प्रियम्बल में लिख रखा है कि आपको इकोनॉमिक जस्टिस देना है, और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए उनके पास में पावर है. दे हैव दैट, दे कैन गो बियॉन्ड द लॉ आल्सो. बट हियर द ट्रिब्यूनल्स आर द क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट्स. आइडियली इन जनरल दे डू नॉट गो बियॉन्ड द स्टैट्यूट. सो आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की रिलीफ, अगर आप किसी प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज कर रहे हैं, तो उसका रिलीफ आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल फोरम से नहीं मिल सकता. ये यहां से पढ़ के समझ में आएगा. सो इफ यू आर इन दैट, क्योंकि आपको किस फोरम पर जाना है उसके लिए पहले आपको उसके फोरम का स्कोप समझ में आना चाहिए. एंड हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी दैट इज नॉट द एप्रोप्रिएट फोरम. यू मे राइट इट, There is no one who is denying कि आप constitutional challenging वाले points को आप grounds of appeal में मत लिखो. But they are not the competent forum to deal with such cases. Okay. Now, the tactics. जैसे आप KYC बोलते हैं वैसे ही KYZ. Know your judges. That is important. Now, how to know the judges? अभी आप बोलेंगे सर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल तो अभी तो नया है. सो द मोमेंट यू स्टार्ट टू अपीयर आपको लगेगा कि सर नो योर जजेस कैसे पता लगे. तो आपको उस ट्रिब्यूनल में, अपीलेट ट्रिब्यूनल पे आपको 2-4 दिन आपको बिताने होंगे. एंड यू हैव टू सिट देम, यू हैव टू ऑब्जर्व देम, देयर बॉडी लैंग्वेज, देयर वे ऑफ एक्सप्रेशन, दे आर इवेल्युएटिंग, वेयर दे आर टेकिंग अ पोज. उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आएगा, जैसे मुंबई में है
आपके पास में 2 फोरम है, 2 ही बेंचेज है, स्टेट बेंचेस, एक तो थाने में आएगी, एक बीकेसी में आएगी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। 2 ही तो फोरम है, जाकर बैठना है आपको, 10-15 दिन लाइफ को एंजॉय करना है, वहाँ जाकर देखिए। अगर आप उसको उस स्पिरिट में लेंगे, लर्निंग स्पिरिट में लेंगे, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो 15 दिन आपको कहाँ तक पहुँचाएंगे यू नेवर नो। So you have to be a student then. So have the understanding of the forum, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, फिर उनके कुछ ऑर्डर्स, उनका अगर पास्ट अगर आप देख पाएँ कि इन जजेस ने या इन्होंने किस तरीके के ऑर्डर्स निकाले, वो चीज़ें धीरे धीरे द मोमेंट ओवर द पीरियड यू विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फोरम ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रिपेयरिंग योर ड्राफ्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अपील। अब आप बोलेंगे सर तो बहुत सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव है, अगर आपको फाइनल वर्जन पर जाना है, बाकी तो एक स्ट्रक्चर सभी के पास में, स्ट्रक्चर इज ऑलवेज देयर विद यू। सो या तो आप अपने स्टैंडर्ड वे से जाएंगे, या फिर आप पर्सन को समझ के उसके हिसाब से लिखेंगे। अब आप कितना फाइनल होना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, ये तो आप ही की चॉइस है, लेकिन जो एक्चुअल वर्जन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। And then master the facts of your case, as I've mentioned. I've given an example also. You have to have the master. Actually, appellate tribunal पर practice करने का जो सीधा राज है वो ये है, you have to master the facts. Fact writing को अगर आप समझ गए तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी काम यहाँ से हो जाता है. And of course, you have to know about the deep understanding of the relevant law. You have to know about it. And then when I discuss about the deep understanding of the law does not mean here GST law only. We have, I think, I have enlisted 20 plus laws which are directly related to this particular law. तो आपको multiple laws की reading करके ही आप उसको next level तक ले जा पाएंगे। तो चैट जीपीटी है, वो चीज़ नहीं कर पाएगा सर, चैट जीपीटी वो चीज़ नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है प्रेजेंट के हिसाब से। हो सकता है 2 साल बाद मेरा व्यू चेंज हो जाए, लेकिन आज के समय में मुझे लगता है कि वो केस को उस तरीके से पकड़ नहीं पाता, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ पाएगा। तो वो आपको हेल्प तो करेगा, लेकिन वो सतही तौर पर करेगा। अगर आप उसमें डुबकी लगाना चाहते हैं तो आई थिंक दैट इज, वो आपको ये बता देगा, आपके जूनियर को ये बता देगा दैट इज द फ्रेमवर्क। आप उससे पूछ सकते हो मैं इसको कैसे लिखूं, तो वो ये बता देगा ऐसे लिखो, लेकिन लिखना क्या है और उसमें इमोशन कैसे क्रिएट करना है। So I think you are the supercomputer, not that. Okay. And then know the decorum of the forum, which he has already discussed. These are the so and so rules which you should know. Again, the psychological point is, unless you know the forum, how to know the forums, उसके rules और उसके constitution से उस forum का आपको पता चलेगा। और रूल्स में बताया कि आपका ड्रेस कोड ये होना चाहिए, आपका फॉर्मेटिंग इस तरीके से होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको कमिश्नर को ही डेजिग्नेट करना है एज इज मेंशन, राइट। नाउ अगर आपने कमिश्नर नहीं और जॉइंट कमिश्नर अपील लिख दिया तो क्या आपकी अपील क्वैश हो जाएगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दे विल कंसिडर इट। ओके, ऐसी मिस्टेक्स के लिए इफ सपोजेडली यू हैव नॉट परफॉर्म द सिग्नेचर ऑन द अपील, इट डज नॉट मीन that is this appeal is going to be quashed. ऐसा नहीं है, they are also considerable in that sense, but if they notice it and they point out it, उससे आपके अपीयरेंस और आपकी इमेज पे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो आपको ही महसूस होने लग जाएगा, एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिटेरियोरेट। सो क्योंकि हमको अपर स्केल पे जाना है तो वी हैव टू हैव द एक्सरसाइज विद फॉर एवरी कॉर्नर ऑफ दिस असाइनमेंट, राइट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अपील. You have to put forth the allegations. Please mind it, the allegations are to be reproduced without making any changes. मतलब आप अपनी तरफ से कुछ मत लिखिए, आप तो बोलिए appellant wants to submit that below allegations have been taken into consideration in the order in appeal.
okay, and you give the reference of the particular para and page of that order, so that, and you reproduce it. Of course you have to attach it in the annexure also, so I am not denying from that, but आप उसको यहीं उसके स्कोप को फिक्स करिए, यू फिक्स द स्कोप, उनको पता चलेगा ये एलिगेशंस लगाए गए। और क्योंकि आज आप अपील फ्रेम कर रहे हैं, हियरिंग आएगी पता नहीं कब, सुनवाई होगी पता नहीं कब, और ऑर्डर बनेगा पता नहीं कब, तो तब जब आप हियरिंग में जाएंगे, यू मे बी हैविंग यू नो सो मैनी असाइनमेंट्स विद यू, you may or may not be able to find out the time to revise the entire things. जितना अच्छा ड्राफ्ट आज आप तैयार कर देंगे, कल के लिए आप सुकून तैयार कर रहे हैं। So it is better to struggle today rather than tomorrow, क्योंकि तब क्लाइंट भी उतना सपोर्ट नहीं दे पाएगा, तब पता नहीं जिस टीम ने आपके लिए वो सब कुछ तैयारी करी है, वो टीम भी आपके साथ में होगी कि नहीं होगी। There are number of things with that. So let us pay 100% of the efforts on drafting it, 100%. And then, as I mentioned, grounds, legal grounds, factual grounds, and then pray, and that's it. How much time do I have? I can discuss number of things, but कितना time है sir? अभी कितनी बजी? Okay. Yes. So procedural ग्राउंड पर भी हम लोगों को थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। मान लीजिए ऑफिसर जस्ट यू नो एनंसिएटिंग दिस प्रोसीजरल ग्राउंड, कंसीडर ए केस वेयर द लर्नेड फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हैज नॉट परफॉर्म द सिग्नेचर ऑन द ऑर्डर, दे हैव सील्ड and they are not, and you have taken a plea in the pretext of rule 26 of central GST rules, जहां ये लिख रखा है कि किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन को साइंड होना चाहिए बाय वे ऑफ दीज, और बता रखा है कि किसको साइन करना है, एंड सो रूल 26 सब रूल 1 सब रूल 2 एंड लॉ, एंड देन यू टेक अ ग्राउंड वेदर इन facts and circumstances of the case, can a demand be issued in the pretext of unsigned order? Okay, a small question. And then you say that as rule, it may be noted that rule 26 of central GST rules stipulate that that every communication has to be the signed communication. It may be noted that so and so page, last page, blah page, ये page, वो page, that is not signed. And फिर आप हाई कोर्ट के आपको कई मैटर भी मिल जाएंगे, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे आपको कि अनसाइंड ऑर्डर की कोई वैलिडिटी नहीं है। नाउ क्या ये अकेला ग्राउंड आपको इस केस से बाहर निकाल सकता है? द पॉइंट इज दिस, क्या अकेला ये ग्राउंड आपको इस केस से बाहर निकाल सकता है? What do you say? Why? Remedy? Remedial defect. Okay. Good. Then what is the sensitivity of High Court judgment? That is also the point. Now, the full and final point is that you have to take up this point. इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर आप इस एप्रीहेंशन में हैं कि ये अकेला ही आपको बाहर निकाल देगा, आई थिंक इट इज डाइसी। नाउ हो सकता है कि मेंबर जो जुडिशियल मेंबर हो, जो लीगलिटी को हार्डकोर लीगलिटी में ले जाता हो सकता है वो आपको फेवरेबल दे दे, आई एम नॉट डिनाइंग, बट इट इज लेस लाइकली। बोलेंगे ठीक है ना, साइन नहीं है, करवा लेते हैं साइन। अभी बोलो whether this order was actually issued by the GST department or not. This question may be raised by the tribunal. Then what will you answer? आपको यही पूछेंगे ना, ये तो तय है ना कि ये डिपार्टमेंट ने इशू किया है, या इस पे हाँ, if it is not issued by the department, then of course that can be quest, that will be quest. But if it is issued by the department in substance and merely it is not signed, सिर्फ इस प्रोसीजरल लैब्स पे इस प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर दिया जाए, it is highly unlikely. So what is the crux of this? You have to take up
all the possible cases, all the possible grounds. And you have to give a briefing of every single ground. ऐसा नहीं है कि वहाँ आप appearance में जा रहे हैं और एक ही ground आपको discuss. You take up all the possible grounds, which you consider it legitimate to discuss. Okay. So procedural lapse पर procedural lapse भी अपने आप में एक क्वेश्चन है एक्चुअली. सही बात तो ये है कि क्या कौन सी चीज को आप प्रोसीजर बोलते हैं, कौन सी चीज को आप सब्सटेंटिव बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन. ओके, आप प्रोसीजरल पॉइंट को सब्सटेंटिव कैसे बनाते हैं, ये आपकी आर्ट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अरे इतने छोटे से सेशन में तो सब नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि these are the indicators based on which you may start to think. क्योंकि ये सारा गेम जो है वो थिंकिंग से स्टार्ट हो रहा है. पहले आप सोचेंगे एंड देन यू विल गो फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ योर स्ट्रेटेजी एंड देन यू विल गो फॉर ड्राफ्टिंग. So I am able to see few of the members are sleeping and enjoying and they are annoying me. So वही होता है ना, कई जो मैं अपने विद्यालय में पढ़ता था तो हमारे एक गुरुजी थे, वो ये कहा करते थे, किस किस को याद करें, किस किस को रोएं, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोएं. राइट, तो ये भी एक जीवन है और दिस इज एन इंडिविजुअल चॉइस एक्चुअली. लाइफ में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है. एंड लेट मी टेल यू, दिस लॉ इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट. दिस इज हाईली सब्जेक्टिव. दिस इज नॉट प्योर साइंस. मतलब जो भी मैं कह रहा हूँ कुछ भी इसमें एब्सोल्यूट नहीं है. इसीलिए कई बार क्या होता है कि जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी से जब मैं लिटिगेटर्स को देखता हूं, दे वांट टू रीच अपॉन द एब्सोल्यूटनेस, और वो उनके दिमाग में एक बैरियर क्रिएट करता है. दे ऑलवेज विश. कई बार हम लोगों को कॉल आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बीइंग इनटू द लिटिगेशन फील्ड, जनरली आई गेट अ कॉल फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली, एंड दे वांट टू से सर एक छोटा सा क्वेश्चन है. मैं बोलता हूँ यार छोटा सा होता तो तुम मेरे पास नहीं आते, इतना तो मुझे पक्का है. एंड दे ऑलवेज वांट टू रीच एट द एब्सोल्यूट सॉल्यूशन, एंड दैट इज ट्रू इन द लीगलिटी. आई थिंक इट इज नॉट अ केस. It is not a case. So this litigation is not a name of absoluteness. This is highly subjective, very personalized, and very depending upon your thinking process and other external factors. And then you have the prey. Yes. अब यहाँ एक कैच है. आपको प्रे, अब ये जो एक स्टैंडर्ड मैंने प्रे बनाया है, इसमें जहां तक रिट जुरिस्डिक्शन का सवाल है, रिट जुरिस्डिक्शन में आप जो डिमांड नहीं करते हैं उसका भी रिलीफ आपको मिल सकता है, लेकिन अपीलेट फोरम पर, अब ये कॉन्शियस एक्सरसाइज है, आप जो मांगेंगे वही आपको मिल सकता है, उसके बियॉन्ड जाके आपको नहीं मिल सकता है. एंड सो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन डिमांडिंग द रिलीफ. हम यहां कैजुअली उसको डिमांड बोल रहे हैं, अदरवाइज दैट इज अ रिलीफ सॉट. Okay, if you are saying them, I demand the relief, so that is not the forum where you can use the word demand. So you should be very, very keen observer in terms of asking for the relief. So what is the process? Though all you do, but what I do is is being shared here. Firstly, I focus on the operative para of the order. The operative para of the order. Many a times you would see that they are asking you to pay so and so amount in the pretext of tax liability, interest, penalty under various provisions. आपको हर एक चीज को अटैक करना है ग्राउंड में, हर एक चीज को अटैक करना है, इनफैक्ट हर एक चीज को अटैक करना है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में इन योर फैशन. आपको जो रिलीफ चाहिए ना, ये बिल्कुल एक्चुअली बॉटम अप अप्रोच है. आपको जो रिलीफ चाहिए उस हिसाब से आपके ग्राउंड्स बनने चाहिए और उस ग्राउंड्स के हिसाब से आपके फैक्ट्स बनने चाहिए.
दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस. आपको जो चाहिए पहले रिलीफ लिखो, रिलीफ के लिए आप ग्राउंड्स लिखो, और ग्राउंड्स के लिए आप फैक्ट्स लिखो. वो फैक्ट्स हों जो दैट शुड लीड टू सब्सटेंशिएट योर ग्राउंड्स. बस यही आर्ट है इसका. बहुत ही सिंपल है कहना अगेन, लेकिन what I consider is this. So many a times you would observe that they are issuing the order to pay the amount in various pretext. और हम कई बार क्या करते हैं, उन पेनल्टी के प्रोविजंस को, जिन्होंने मल्टीपल प्रोविजंस को इन्वोक करते हैं, और हम हो सकता है कई बार एक या दो ही प्रोविजन, पेनल्टी प्रोविजन पे ग्राउंड्स ले गए. Many times it happens. We don't actually, we miss to create a ground so as to take a relief from the forum. So please be very careful. उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो फाइनली आपसे डिमांड किया है, उसी का एक reconciliation बना के वो एक्सरसाइज आपका होना चाहिए. So the pray is very again very important part, और आप उसको conclude कर रहे हो. Then you have to annex the number of documents, the entire file which you have to do, show cause notice, reply to the show cause notice, and then the order and blah blah blah. पूरा अपील आपने क्या सबमिट किया, ये सारी चीज़ें आपके अटैचमेंट में चले जानी चाहिए, बिकॉज वहीं से ये पूरा का पूरा सिलसिला चालू होता है. एंड यस, वन मोर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, citation of case laws. That is a very exciting, part of preparing the appeal. Or in my experience, whenever I do interact with the chartered accountants or other fraternity members of legality, because वो जब भी हायर फोरम के केस मेरे पास लेकर आते हैं, तो जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ तो बताते हैं सर ये केस लॉ भी था, ये केस लॉ भी. They do feel very happy, and why should not be, right? The point is whether those case laws are really applicable in your context. They fail to address that issue. High Court, Honorable Bombay High Court in so and so case has upheld that order. ये एक पैरा बनाया, close. How it is related to me? Are we able to establish it? If we are not able to establish it, मानकर चलिए सामने वाला प्रतिद्वंदी आपसे ज्यादा होशियार है. So if I were the opponent's counsel, हो सकता है मैं उस केस लॉ से निकाल के बता दूं कि दिस केस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस, द कॉन्टेक्स्ट आर डिफरेंट, और मैं पूरी टेबल बना के ले जाऊंगा, इस केस में कॉन्टेक्स्ट ये है और उस केस में कॉन्टेक्स्ट ये है, एंड सो इट इज नॉट एप्लीकेबल. देन व्हाट विल यू डू? सो merely obtaining the information from various sources should not make you happy. That information should be relevant, first point. That information, आप जिसको relevant समझ रहे हो, क्या उसको relevant समझा पा रहे हो? So many a times what I do is, case law जब भी हम prepare करते हैं, जिस भी case law के pretext पे मैं अपने ground बना रहा हूँ, what I do is, I do have a conscious exercise again. और मैं ये बताता हूँ, इस कोर्ट केस में कॉन्टेक्स्ट ABC था, मेरे केस में कॉन्टेक्स्ट ABC था, और क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट मैच करते हैं, इसीलिए इसका रेशियो डिसेंडिंग मेरे पर भी एप्लीकेबल होता है. तब और अब मैं आपको इसके आगे ले जाता हूं. यू मे बी इन ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस अनफेवरेबल जजमेंट्स इन योर, तो आपको लगता है कि वो अनफेवरेबल भी है इसके केस. आप ये, इफ यू आर कॉन्फिडेंट एट ऑल, you should be able to demonstrate that why these case laws are not applicable. And what is happening? You are relating these case laws to your context, to your intended order, to your intended relief. यही तो आर्ट है. जनरली हम देख रहे हैं कि लोग सिर्फ फेवरेबल केस लॉस को देख, वो सामने वाला भी दो केस लॉ लेकर आने वाला, तब आप क्या करेंगे? अब ये एक्सरसाइज है, कई लोगों को लिखने से डर लगता है. ओके,
लिखने से डर लगता है लोगों को, बिकॉज आपको जब भी कलम चलानी है मतलब बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस पहले आपके साथ में लाना है, एंड यू शुड बी एबल टू हैव द थिंकिंग प्रोसेस। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो थिंकिंग प्रोसेस का है। आप कितना स्प्लिट, कितना सिंपल सोच सकते हैं, उसको कितना स्प्लिट कर सकते हैं। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट with you, believe me, that field is yours. And if you don't have the attribute, let me tell you, you can develop that skill also. ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, बट उसके लिए फिर आपको बहुत ही एक कॉन्शियस एक्सरसाइज, मुझे लगता है एक टाइम लेकर आपको कंसिस्टेंटली उसको करना चाहिए। yes लेटर ऑन। सी इसमें एक राइडर लगा के छोड़ रहा हूँ, मुझे भी उसको थोड़ा सा रिसर्च करना है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूल्स तो आए हैं, मैंने भी पढ़े हैं, लेकिन उतना एक्सटेंसिवली नहीं पढ़े। आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग दिस, बट यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ। इफ़ यू रीड रूल 20 ऑफ IT80 रूल्स, IT80 रूल्स, IT80 रूल 20 को अगर आप रीड करेंगे, आई एम सॉरी, I read it verbatim actually, and it is very important to know. Rule 8, I am sorry, Rule 20 of GST Appellate Tribunal and Rule 8 of IT80 rules, दोनों का कंपैरिजन आपको करके उसको समझना होगा। Rule 8 of IT80 rules 1963 says, every memorandum of appeal shall be written in English and shall set forth concisely and under distinct heads. Okay, and then it says the grounds of appeal without any argument or narrative. Please mind these wordings. I repeat it. It says the grounds of appeal without any argument or narrative. So your grounds of appeal in the IT80 proceedings should not be argumentative. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप IT80 के फोरम्स पर अपील प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर रहे हैं, तो वहाँ रूल 36, फॉर्म 36 है। फॉर्म 36 में आप अपनी जो भी क्लैरिकल टास्क है पूरा फॉर्म आप फाइल करते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखने को कहा गया है। They are not asking you to put forth your written submissions there. मतलब ये कि आपका रोना क्या है, सिर्फ आपको वो लिखना है। ओके, किन कारणों से आप रो रहे हैं उन चीजों को आपको रिटर्न सबमिशन में देना है। Here you would observe in APL 05 they ask you to submit a statement of facts and also grounds of appeal. And this rule 20 of GST 80, it says content, यही para-material provision, it says every form of appeal shall set forth concisely and under distinct heads, comma, the grounds of appeal and such grounds should be numbered consecutively and shall be typed in double space of the paper. If you read both of the laws in comparative manner, you would understand that IT80 के प्रोसीजर में बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ ये साइलेंट है। एक्चुअली ये रूल्स जो है ना बहुत ही हेफेजेड मैनर में ड्राफ्ट किए गए। इस रूल्स को अगर आप पढ़ने बैठेंगे यू वुड नोटिस नंबर ऑफ इनकंसिस्टेंसीज एंड इरेगुलरिटी, एंड समटाइम्स आई सी दीज आर अल्ट्रा वायरस द प्रोविजंस आल्सो। ओके, सो वी आर ऑल्सो लर्निंग नाउ। अभी तो वो आए हैं रूल्स, थोड़ा सा टाइम लेके धीरे धीरे उसको हम देख रहे हैं कि क्या क्या और उसके अंदर निटिग्रिटीज हैं। लेकिन आप और ये एक और स्किल है जो जनरली मैं अप्लाई करता हूँ। व्हेनेवर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द विड्थ ऑफ द प्रोविजन,
I try to compare with other laws also or with other provisions of the same act also. मेरे को अगर GST 80 को समझना है, I will put in comparison with section 107 also कि फर्स्ट अपील कैसे चल रहा है और GST 80 कैसे चल रहा है. जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको कई सारी डाइवर्सिटीज और उसके लिखने के अंदाज और उसके लिखने के कारणों का भी आप पता लगा पाएंगे कि why it has been stipulated like that. Hello everyone. Okay. This is a journey, actually endless journey. Now you have to be very good in your vocabulary also. So many a times we say appellants wants to submit that और repeat करते चले जाते हैं. So it shows that we have very less words in our vocab. We have to be, rich in the vocab also. So it's like, you should be able to use the synonyms also, right? Submits, put forth, request, humbly request, provides, blah, 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 right? I think, now next. This is also a beautiful exercise which I try to do to make myself efficient, not stipulated in any law. I try to do this exercise to make myself efficient. What is this exercise? I try to make a comparative table कि मुझे अगर फर्स्ट अपील पर जाना है तो मुझे ये देखना है कि शोकोज में मैंने क्या एलिगेशंस ऑब्जर्व किए हैं, वो किस पैरा पर हैं और किस पेज पर हैं. बिकॉज आप जितने हायर फोरम्स पे जाएंगे दे डोंट गेट दैट मच टाइम, दे गिव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू यू. और अगर आप तभी पन्ने पलटने में अगर वो समय बिता देंगे तो यू डोंट गेट वेरी गुड इमेज बिफोर द फोरम, राइट? सो दिस एक्सरसाइज मेक्स यू वेरी एफिशिएंट, वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो. आपको पता चलता है कि 5 दिन बाद में हियरिंग है एंड यू आर ऑक्यूपाइड समवेयर, तो या तो ये है कि 100 पेजेस को आप वापस रीड करो जो आपको 1 साल बाद फाइल खुलने को मिलेगी, और या फिर आप उस समय इतनी कंस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज कर लो कि आपको लास्ट डे पर भी उसको पढ़ना पड़े तो यू वुड बी एबल टू ऑब्जर्व दैट व्हाट इज द केस ऑल अबाउट. सो व्हाट इज द एलिगेशन, व्हाट इज द पेज नंबर ऑफ दैट ऑर्डर, व्हाट इज द पैरा नंबर ऑफ दिस, और उससे रिलेटेड फैक्चुअल ग्राउंड्स क्या है, उससे रिलेटेड लीगल ग्राउंड्स क्या है, कौन से पैरा पर आपकी अपील में एग्जिस्ट कर रहा है. सो आई एम एबल टू मैप इट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग, क्योंकि सी लॉ का नॉलेज आपके पास में है, आपको पता है हाउ टू एनंसिएट इट, हाउ टू एलॉबरेट इट, हाउ टू मेक इट प्रेजेंटेबल. बट आपको सब्जेक्ट मैटर पे कंट्रोल कैसा आएगा, इतने सारे पेजेस आपके पास में. So that synopsis works. That is not the part of any appellate tribunal rules, but informally they do ask for this also. कि यार आप इस तरीके की एक्सरसाइज कर दो तो उनके लिए इजी है, राइट? सो जिससे काम निकालना है उसकी लाइफ को इजी भी बनाना हमारा ही काम है. दिस इज ऑल्सो द पॉइंट. एंड देन यस, नाउ कैलेंडर ऑफ डेट्स, यू गिव द डेट वाइज ऑल दीज थिंग्स, राइट? नाउ द पॉइंट इज, कई बार हम ये भी देखते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल पर क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस हो रहा है, okay, and you are giving the dates of or calendar of entire proceeding happened till now. No need. These are not relevant for them at all. Why to do that exercise? इसका मतलब ये है कि हमने एक फ्रेमवर्क बना रखा है और हम केस टू केस डिफर करने के बजाय अपने ही फॉर्मेट से चिपक गए. एंड सो जब भी हम इतने अधीर हो जाते हैं, जब भी हम किसी चीज़ से इतने अटैच हो जाते हैं, तो वी स्टार्ट टू बिकम लेस रैशनल देन, राइट? सो विजडम इज अ थिंग विच मेक्स यू सिचुएशनल, राइट? सो वी हैव टू बी सिचुएशनल, वी हैव टू कंसीडर इज देयर एनी रेलेवेंस ऑफ दिस. इफ इट इज सो वी विल मेंशन, इफ इट इज नॉट रेलेवेंट वी विल नॉट मेंशन. एंड दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला विच आई डू impart to my interns at least at the initial stage. उसके बाद में तो गाड़ी चलाना अपने आप आ जाता है. जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हैं, उसको अपनी बॉडी में इम्पार्ट करते हैं, राइट? तो अगर इनिशियल स्टेज पे हम ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, आई डू टेल टू फॉलो दीज 4 स्टेप्स स्ट्रेटजी: मैडमैन अप्रोच, आर्किटेक्ट अप्रोच, कारपेंटर अप्रोच एंड द जज अप्रोच.
So madman approach says that you just jot down all the points whatever is coming in your mind, बस लिखते चले जाइए, ज़्यादा उसको किसी ऑर्डर में लेने की ज़रूरत नहीं है. Then you synchronize it, that is called as architect, and then carpenter approach जो पूरा उसको पैक करता है, and then फिर उसको रिव्यू में ले जाइए. So I do 2-step working in that. Once I draft it, मेरा कारपेंटर स्टेज पूरा हो गया, then I to take a break. I do take a break. अब ब्रेक कितना हो सकता है अगेन सब्जेक्टिव, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन I do take a break and then I look upon the case with an independent eyes. तो मुझे ही खुद को 1 दिन 2 दिन बाद में पता चलने लगता है कि यस इससे भी बेटर वर्जन पॉसिबल था, या कहाँ हमने उतना मैच्योरिटी में उसको नहीं लिखा है, राइट. सो जनरली इंटर्न्स को ये कहते हैं आप देखिए, अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज करना है तो करिए, और अगर वो ऑलरेडी इम्पार्टेड है तो देन इन दैट केस यू डोंट हैव टू think upon it very much. Now, to conclude my session, I should say one thing. We don't have to be emotional. We have to create the emotion. When you are talking about legality, you don't have to be emotional. Client will make you emotional. वो उसका काम है, वो उसकी एक्सरसाइज है, वो उसकी कॉन्शियस एक्सरसाइज है. आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज फूल. वो इमोशन ही क्रिएट करेगा, वो उसका काम कर रहा है, वो उसका डिलीवरेबल है. आपके डिलीवरेबल में आपको भी इमोशन क्रिएट करना है, बट यू डोंट हैव टू बी इमोशनल. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज लीगलिटी इज नॉट डिस्कसिंग अबाउट मॉरलिटी बाय एंड लार्ज. Of course, we have to have the principles of integrity with us. I am also keenly following that. लेकिन केस को जब डील कर रहे हो तो मॉरलिटी को अनड्यू बीच में नहीं लाना है. ओके, व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज केस किस पर है, आपका क्लाइंट सच्चा है झूठा है ये मैटर नहीं कर रहा. मैटर क्या कर रहा है, जहाँ तक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का सवाल है, ऑर्डर इन ओरिजिनल में एलिगेशंस क्या हैं, उसमें किन फैक्ट्स को कंसीडर किया है, ये देखने की जरूरत है कि क्या उन्होंने फैक्ट्स को कंसीडर ही नहीं किया है, या जिन एविडेंसेस को कंसीडर किया है क्या उसको राइट स्पिरिट में कंसीडर किया है. आपका काम है ये देखना कि क्या वो एविडेंस राइटली एप्रिशिएट हुए हैं. अगर वो राइटली एप्रिशिएट नहीं हुए तो आप उसकी डेफिशिएंसीज को हाईलाइट करिए बाय वे ऑफ फैक्चुअल एंड लीगल ग्राउंड. जिन चीज़ों को उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया है, दोज एविडेंसेस विच हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, अगेन यू मेक इट फॉर्म इट, यू मेक अ पार्ट ऑफ दिस अपील इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अपील एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, एंड अकॉर्डिंगली यू ट्राई टू डू. आपको ये मतलब ही नहीं है कि उसका ये क्रेडिट, अभी आप कई बार क्लाइंट आके बताएगा आपको कि देखो मैंने ये गलत किया है, आप उसको अपने अंदर मत लीजिए. आप ये देखिए ऑर्डर इन ओरिजिनल आपके बारे में क्या बात कर रहा है, या आप ये देखिए शोकोज इसके बारे में क्या बात कर. यू जस्ट हैव टू लुक अपॉन द केस ओनली एंड टू डील इट वाइजली. सो विद दिस आई कंक्लूड माई सेशन. आई थिंक आई एंजॉयड, यू मस्ट हैव ऑल्सो एंजॉयड, आई होप सो. नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई सेशन विथ फ्यू लाइन्स ऑफ हिंदी पोएम. सुबह बनने के लिए हर शाम को ढलना पड़ता है, सुबह बनने के लिए हर शाम को ढलना पड़ता है, बनने को मोती बर्फ को भी गलना पड़ता है, हाथ पर हाथ धरे यूं ही मत रहो बैठे साथियों, पाने को मंजिल हर इंसान को चलना पड़ता है. थैंक यू.